सो अगर टू ट्रायंगल सिमिलर है तो टोटल हमारे पास 6 कंडीशंस है, 3 कंडीशंस ऑफ साइड्स एंड 3 कंडीशंस ऑफ एंगल्स। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3, condition number 4, condition number 5 and condition number 6. So whenever two triangles are similar, total we have 6 conditions. But suppose अगर आपको similar prove करना है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं है और अगर आपको सिमिलर प्रूव करना है, सो आपको 6 कंडीशंस की जरूरत नहीं है। इफ एनी 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। So only 3 specific conditions are fulfilled, then the two triangles become similar, and that is known as test of similarity. Test of similarity. So out of 6, अगर कोई भी 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है, कौन सी वो 3 कंडीशन से हम देख लेंगे। सो हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे और उसको कहा जाता है टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी इज क्लियर। अब टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी देखते हैं। There are 3 tests of similarity. The first one is A test of similarity. Second one is S test of similarity. And the last one is SAS test of similarity. So 3 tests है similarity के. We have these 3 tests of similarity. मतलब A angle, side and side angle side. So अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दिस 3 और दिस 3, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, कोई भी एक, मतलब ऐसा नहीं है कि तीनों, कोई भी एक, उनमें से कोई भी 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है वो 6 में से, देन द 2 ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। सो 1 बाय 1 हम देख लेते हैं ऑल द 3 टेस्ट। तो कंटिन्यू करते हैं 1 बाय 1 ऑल द 3 टेस्ट एंड हाउ टू राइट इफ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और अगर आपको प्रूव करना है कि 2 ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं, सो हाउ टू राइट, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं 1 बाय 1। सो द फर्स्ट वन इज ए एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सो टू अंडरस्टैंड, हमारे पास 2 ट्रायंगल्स है, से ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। सो इफ यू सी क्लियरली, सो व्हेनेवर यू विल गेट 2 ट्रायंगल्स और आपको सिमिलर प्रूव करना है, सो इन योर एग्जाम ऑल्सो उस फिगर को बड़ा ड्रॉ करो ताकि एंगल्स क्लियरली दिखे। ओके, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सिमिलैरिटी का। सो यहाँ पे अगर हम बात करें 2 ट्रायंगल, सो एंगल A इज 80 डिग्री, हियर एंगल P इज 80 डिग्री। सो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, ईच इज 80 डिग्री। Angle B is 40 degree and angle Q is also 40 degree. So angle B is congruent to angle Q. In the last angle, angle C is 60 degree and angle R is 60 degree. So यहाँ पे angle C is congruent to angle R, and therefore here the 3 angles of one triangle is congruent to 3 angles of the other triangle. And if the 3 angles are congruent, we can say that both the triangles are similar by which test? Angle test of similarity. So how we write? So in triangle ABC and triangle PQR, angle A is congruent to angle P. Why? Because each is 60 degree. Each is 80 degree. Angle B congruent to angle Q, each is 40 degree. And the last one, angle C is congruent to angle R, each is 60 degree. And therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR by AAA. A एंगल, यहां से एक ए मिला, एंगल। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3।
any three specific conditions are satisfied, and therefore the two triangles are similar by a test of similarity. So I hope it's clear कैसे लिखते हैं and दो ट्रायंगल कैसे, how they are congruent, how they are similar by a test of similarity. Now suppose इंस्टेड ऑफ थ्री एंगल्स, अगर दो ही एंगल आपको दिया है, दो एंगल दिया है खाली, द लास्ट एंगल से 60 डिग्री मेंशन नहीं है, 60 डिग्री मेंशन नहीं है, एंड सपोज ओनली टू एंगल्स आर गिवन, वन एंगल इज 80 डिग्री एंड एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू 40 डिग्री. सो यूजिंग ओनली टू एंगल्स, कैन वी से दैट द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर? Yes, we can say, because the remaining angle of a triangle will always be congruent with the remaining angle of the third triangle. I hope this concept is clear. So if only two angles are given instead of three angles, then also we can say that both the triangles are similar, because the remaining angle will be congruent, and therefore in this particular case, if two triangles are given in which only two angles are given which are congruent, then we can say that the two triangles are similar, and no need to write this line. So we will write only two angles, the angle A congruent to angle P and angle B congruent to angle Q, and the triangles will be similar by a test of similarity. ये नहीं लिखेंगे. ओके, सो अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, बिकॉज द रिमेनिंग एंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट, and therefore both the triangles are similar by a test of similarity. Now very important thing, दो एंगल, वो दो एंगल कौन से हो सकते हैं? In this particular case, एक था हमारा 80 डिग्री और दूसरा था 40 डिग्री. So this was given in the question, but suppose question में एंगल्स नहीं दिए हुए हैं, सो कौन से एंगल्स पॉसिबल होते हैं, या कौन से एंगल्स क्वेश्चन में नहीं दिए रहेंगे, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई. उसमें से देख लेते हैं. द फर्स्ट वन इज पॉसिबल एंगल्स. फर्स्ट वन हमारा होता है ऑल्टरनेट एंगल्स. ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया रहेगा. यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये ऑल्टरनेट एंगल है, और ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट. The second one is corresponding angle. करस्पॉन्डिंग एंगल क्वेश्चन में दिया रहेगा. अगर दो फिगर में, अगर दो ट्रायंगल में अगर आपको करस्पॉन्डिंग एंगल दिखते हैं तो वो हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए. करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा अल्फाबेट? F. ऑल्टरनेट एंगल Z. This angle will be congruent to this, and here this angle will be congruent to this. I hope this is clear. Third angle, say vertically opposite angles. X. This angle will be congruent to this angle. एक vertically opposite angle हो सकता है. And the fourth one, say 90 degree. Right angle. Right angle देंगे. राइट एंगल, ये भी ट्रायंगल के अंदर हो सकता है. फिफ्थ कैन बी कॉमन एंगल. वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई. एक कॉमन एंगल हो सकता है. एंड द लास्ट वन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन डेटा. सो दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स which will be mentioned, any two will be mentioned in the two figures, और आपको आइडेंटिफाई करना है, and then you can prove that the two triangles are similar by a test of similarity. So while solving the sums based on how to identify दो triangles similar है कि नहीं, we'll go through all the possible angles. Okay, so अच्छे से नोट कर देना. So इसमें से the first दो जो है alternate angle और corresponding angle, कब आप सोचेंगे? When in the given figure, अगर हमें कहीं पे पैरेलल मेंशन किया है,
अगर हमें क्वेश्चन में कहीं पे पैरेलल मेंशन किया है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल यूज दिस टू, और बाकी 4 विल आइडेंटिफाई, ठीक है। एंड कॉमन एंगल गिवन डेटा में रहेगा कुछ एंगल्स। सो आई होप द AAA टेस्ट इज क्लियर। Now let us continue with the next test, and that is SSS test. So here SS test of similarity. How will you prove whether the given two triangles are similar by SSS test of similarity? And how to write? Let us learn. And first thing, how will you identify कि ये SSS test of similarity से है? चेक कर लेते हैं। So in the first triangle, 3 sides are given and the values of those 3 sides are given, and in the second triangle, 3 sides are given and the value of those 3 sides are given. So let us take the ratio of their corresponding sides. When two triangles are similar, the ratio of their corresponding sides are equal and the angles are congruent. So angle हमने देख लिया, अब साइड की बात करते हैं। तो साइड में क्या किया जाता है? रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं। सो रेशियो लेते हैं। सो दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब कैसे लेंगे? हाउ टू टेक? सो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले सबसे दो छोटी साइड का रेशियो लो, दो छोटी साइड, ओके। सो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी द स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है? सबसे छोटी साइड ए बी। ए बी इज अवर स्मॉलेस्ट साइड, ये हमारा स्मॉलेस्ट साइड है। एंड हियर पी क्यू आर में सबसे छोटी साइड कौन सी है? दिस इज अवर स्मॉलेस्ट साइड। लेट अस टेक द रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू, दैट इज 4/8, it is 1/2, equation number 1. Next, the largest side. Largest side कौन सी है? This is our largest side. And इस particular triangle में हमारी largest side कौन सी है? 8, 10 and 12. See, this is our largest side. So, सबसे पहले स्मॉलेस्ट साइड देन लार्जेस्ट साइड रेशियो लेते बी सी अपॉन क्यू आर, दैट इज 6/12 and it is again 1/2. This is my equation number 2. And the remaining side, that is AC upon PR, and that is 5/10. That is again 1/2. So therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR. Understood? How? By SSS test of similarity. SSS, side, side and side. एक S कंडीशन नंबर 1, सेकेंड एस कंडीशन नंबर 2, थर्ड एस कंडीशन नंबर 3. सो बाय एनी 3 स्पेसिफिक कंडीशंस वी कैन से दैट द गिवन टू ट्रायंगल्स आर हमारा सिमिलर। कैसे सिमिलर हो गए? आई होप इट्स क्लियर, क्योंकि उनके रेशियोज इक्वल है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल है। और कोई भी 3 कंडीशन लिए हमने, यहाँ पे हमने एंगल्स नहीं लिया है। एंगल के 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन साइड्स के है। सो यहाँ पे 6 में से 3 लेना है। सो बाय टेकिंग दी साइड्स हमने इजीली प्रूव कर दिया दैट द ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, तो जब सम्स आएंगे सो कैसे लेना है? सबसे छोटी वाली साइड का रेशियो लेना है, फिर सबसे बड़ी वाली साइड का रेशियो लेना है, एंड द रिमेनिंग साइड। एंड इफ दे आर इक्वल देन द गिवन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एसएसएस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं विद द लास्ट टेस्ट, and that is SAS test of similarity. स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द स्मॉलेस्ट 2 साइड, कौन सी 2 साइड सबसे स्मॉलेस्ट है? सो हियर
हियर इन दिस पर्टिकुलर केस ए बी सी एंड पी क्यू आर, सबसे छोटी साइड कौन सी है? दिस इज अवर स्मॉलेस्ट साइड 4 सेंटीमीटर, एंड यहां पे स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है? स्मॉलेस्ट साइड, रेशियो लेते हैं उसका, सो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू 4/8, इक्वेशन नंबर 1. द लार्जेस्ट साइड बी सी अपॉन क्यू आर 6/12, 1/2, इक्वेशन नंबर 2. आई होप इट्स क्लियर. और क्या इक्वल है? यस, देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर फ्रॉम 1 and 2. सो फर्स्ट कंडीशन यहां से एक एस, सेकेंड कंडीशन यहां से एक एस, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. एंड थर्ड एस ए एस इज द टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी. सो एस ए एस, साइड एंगल साइड, सो दो साइड हो गई, अब एक एंगल चाहिए, एक एंगल उनका कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए. एंड यस, इट इज मेंशन इन द गिवन क्वेश्चन दैट एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू. एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बिकॉज ईच इज 40 डिग्री. सो एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है एंड दो साइड्स आर इन प्रपोर्शन, corresponding sides are in proportion, and therefore triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS test of similarity. Okay, I hope it's clear. एंड जो एंगल है हमारा वो दो करस्पॉन्डिंग साइड्स जिनके रेशियोज इक्वल है उनके बीच में होना चाहिए. द एंगल शुड बी बिटवीन द टू करस्पॉन्डिंग साइड्स. सो ए बी एंड पी क्यू is the first corresponding side and BC and QR is the second corresponding side. और दोनों sides के बीच में एंगल है, AB and BC के बीच में एंगल है, PQ and QR के बीच में एंगल है. And if this condition is satisfied, then the given two triangles are similar by SAS test of similarity. So I hope the concept is clear. So we learned how to find whether the given two triangles are similar and by which test. Based on this एक simple एक example ले लेते हैं, then we'll move with our practice set. Okay. So we'll start. So this is very important sum. अच्छे से देख लेना. So there are two triangles given to us. Say ABC and PQR, दो triangle है. And ये जो दो triangle है वो कौन से टेस्ट से सिमिलर है वो हमें चेक करना है. सम को पूरा देखना अच्छे से, तीनों टेस्ट बता दूंगा मैं यहां पे. अब कौन से टेस्ट से सिमिलर है ये, चलो आइडेंटिफाई करते हैं. सबसे पहले कौन से टेस्ट होते हैं? वी हैव 3 टेस्ट. एक होता है हमारा एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, एक होता है हमारा SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी और एक होता है हमारा एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. अब in order to prove whether the given two triangles are similar by SSS test of similarity, हमने देखा the 6 sides, 2 triangles, दो ट्रायंगल के टोटल 6 sides, 6 sides के वैल्यूज दिए रहेंगे. so 6 sides will be given, 6 sides values will be given. अगर 6 साइड के वैल्यूज दिए हुए हैं then we can test for SSS. for SAS 4 sides values will be given. अगर 4 sides जो corresponding sides है, टोटल 4 साइड के अगर वैल्यूज दिए हुए then you can check by SAS test of similarity. और अगर कोई भी साइड का वैल्यू नहीं दिया है, कोई भी साइड का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, सो आप एंगल से चेक करो. सो जब फिगर आपको दिया रहेगा, डायरेक्टली फिगर को देख के आप पता कर सकते हो कि ये मेरा SSS है कि SAS है कि एंगल है. तो चेक करते हैं कि ये दो जो ट्रायंगल दिए हुए हैं वो किससे सिमिलर है. सो दो ट्रायंगल है ABC एंड PQR, आपने बता दिया, राइट.
एस 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 से सिमिलर है। कैसे पता चला? बिकॉज 6 साइड्स के वैल्यूज दिए हुए हैं, राइट? 1 2 3 4 5 6 साइड्स एस एस एस, 4 साइड्स एस ए एस, नो साइड्स या खाली एंगल दिया है तो ए टेस्ट। सो स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखना है स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले रेशियो निकालेंगे, और रेशियो कैसे करेंगे? सबसे पहले स्मॉलेस्ट साइड, इसकी स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है? स्मॉलेस्ट। यहां पे सबसे छोटी साइड कौन सी है? लार्जेस्ट। यहां पे लार्जेस्ट साइड कौन सी है? यहां पे लार्जेस्ट साइड कौन सी है? इन द रिमेनिंग साइड। चलो रेशियो लिखते हैं हम। स्मॉलेस्ट साइड AC अपॉन QR। So this is 24 upon 16. 8 2 16, 8 3 24, 3 upon 2. Largest. BC largest. PR 48 32. Let us reduce, even numbers है। So 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 3 2 6s are 12, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 3 upon 2. And the last one, AB, last one PQ. So 36 24. So 12 2s are 24, 12 3s are 36, 3 upon 2. This is my equation number 1, this is my equation number 2, and this is my equation number 3. And therefore, I can say that both the triangles are similar by S test. अब आप बोलोगे सर ब्लैंक क्यों रखा है? सो ट्रायंगल के नेम जब आप लिखोगे, whenever you write the name of a triangle, there should be 1-to-1 correspondence। 8th स्टैंडर्ड में हमने देखा है। कौन सी वर्टाइसेस, एक पर्टिकुलर ट्रायंगल का कौन सा वर्टेक्स दूसरे पर्टिकुलर ट्रायंगल के कौन से वर्टेक्स के साथ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है। सो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट? कभी भी एंगल से पता चलता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। सबसे पहले एंगल से हम आइडेंटिफाई करेंगे, एंगल एंगल एंगल, हर बार एंगल से हम आइडेंटिफाई करेंगे हाउ टू राइट 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। सो स्टार्ट करते हैं कि कौन से एंगल्स है वो जो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है। फॉर दैट पर्पस, फ्रॉम दिस 3 इक्वेशंस वी कैन से देयरफॉर AC अपॉन QR इक्वल टू BC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ। नाउ विल राइट द 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना हाउ टू राइट 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। सो फर्स्ट फ्रॉम दिस वी विल आइडेंटिफाई AC, which is the angle। एवरी टाइम 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हम एंगल से लिखेंगे। सो इफ AC is my side, which is the angle which is opposite to this side। AC के opposite में कौन सा एंगल है? फिगर में देखो, एंगल B। AC के opposite में एंगल B है। सो here will write एंगल B, और उसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स सेकंड ट्रायंगल का कौन सा होगा? QR के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? QR के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल P। आई होप इट्स क्लियर। और अगर आप फिगर को देख के आपको डिफिकल्ट लग रहा है, सो द मिसिंग अल्फाबेट आप लिख सकते हो। ट्रायंगल ABC में यहां पे AC है, कौन सा अल्फाबेट मिसिंग है? B। सो B, एंड यह QR है तो P। लेट अस आइडेंटिफाई सेकंड। BC है, कौन सा अल्फाबेट मिसिंग है? A। यहां पे PR है तो Q।
और आप डायरेक्टली वहां से भी देख सकते हो BC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, BC के ऑपोजिट एंगल A है एंड PR के ऑपोजिट एंगल Q है, एंड द लास्ट वन AB कौन सा अल्फाबेट मिसिंग है, C, एंड यहां पे आएगा R. So therefore triangle BAC is similar to triangle PQR by SSS test of similarity. So आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो यहां पे इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल PQR, एक लाइन छोड़ देना स्टार्टिंग में, देन यू विल मेंशन, and here we finish the concept of similarity and the various tests to identify whether the given two triangles are similar or not. वीडियो को अच्छे से देख लेना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. प्रैक्टिस सेट 1.3 एंड प्रैक्टिस सेट 1.4 टोटली इस वीडियो पे बेस्ड है. सो अच्छे से गो थ्रू कर लेना, रिवाइज कर लेना. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.